Mediterranean flavor. Sounds delicious, ladies. ये लॉन्ग स्ट्रीट है, यहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये किड्स के लिए एरिया बनाया हुआ है। अपने देसी इंडियन पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, उनका काम है बैठ के बताना कनाडा आएँ कनाडा ना आएँ। ये सब फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं कनाडा में कि आज ताए की बेटे की शादी है, आज ये है, हम उधर जा रहे हैं, आज हमने चिकन कढ़ाई बनाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन से थोड़ा दूर यूक्रेनियन फेस्टिवल पर, जो कि यहाँ पर हर साल चलता है। आज के व्लॉग में मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा कि यूक्रेनियन फेस्टिवल टोरंटो में क्या नज़र आएगा, क्या किस तरह की वाइब होंगी। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस तरह के इवेंट में यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए मुझे रेमेडी स्टेशन से आना पड़ा, सबवे स्टेशन से, रनीमेड स्टेशन से। तो आप जब ये रनीमेड स्टेशन से यहाँ पे आएंगे, ये है ब्लोर वेस्ट विलेज, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होता है। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये यहाँ पे बड़ा सा गिटार है और लाइव सिंगिंग हो रही है। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। इसके बाद आगे चल के भी मैं यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा आपको। काफ़ी सारे फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर चीज़ के, ड्रिंक्स के, और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। आज यहाँ का ये लास्ट डे है, ये 3 डेज़ होता है नॉर्मली। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, सीटिंग बनाई हुई है, सिटिंग एरिया है, लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। ये मैं स्टेज के बिल्कुल पास आ गया हूँ। Янка, чи готові? Просимо! Барвінок, Миссissauga! ये एक डांस होने वाला है। काफ़ी खूबसूरत कॉस्ट्यूम पहना हुआ है इन्होंने।
Amazing, because Barinok is ready for you again, and they're here with two numbers. We have two back-to-back numbers. We've got Girls Salsa Dance with Ukrainian flavor. Sounds delicious, ladies. And followed by a boys dance called Kievski Parubki, which is also sounds pretty good. I don't know. If you know what Kievski Parubki are, you'll get why it sounds so good. Anyway, please welcome Barvinok, Mississauga. काफ़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी लेडीज़ की तरफ से। अभी बॉयज़ की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है फिर से। ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी बॉयज़ का नंबर है बैक टू बैक। लेट्स सी बॉयज़ क्या करते हैं। बॉयज़ ने काफ़ी अच्छा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ब्लू और वाइट। ये आई थिंक इनका ट्रेडिशन होगा यूक्रेन का। Sorry, I'm making for a YouTube. Oh, How about you? my son is right there. Oh, really? Christian, yeah. This one, yeah? And then my other son is on there. No, which this one? Oh, right. This right here. That's Christian. Oh, okay. You can watch in YouTube later, yeah? You send me, yeah. Yeah, sure. This one, right? Yeah, and my other son is on the other side. I'll show you. Great, nice. Yeah, that's Christian. This on the back is Alex, my other son. This one, yeah. Yeah. Nice, okay. Amazing.
काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. So many wonderful singers and dancers to entertain you today. And we have one big, very special dance number at the end here, but we need your cooperation because you're involved, because you're a little bit in the way. So, nam treba що від піднімалися, you have to get up a little bit and move back because this number is big. It's going to require a lot of dancers, but Vanilla Mississauga is dancing it for us. I might remind you that they have 485 dancers. So please, let's move back, give them a little bit of space. And it'll be worth it, I promise. It'll be worth it. So everybody has to move back a little bit. As we close, I would like to invite you to meet a very special person that I've been wanting to meet for a few months now, but my opportunity to meet him has come just now. His name is... Okay, space काफ़ी बन गई है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं.
Ladies and gentlemen, танцевальный ансамбль Барвинок. This ensemble, Mr. Fedid Danilak created this dance just for our festival. When on a whim we suggested, let's try to do this at 2-floor Hopak. And you see they did a fantastic job. Panie Fedid, thank you very much. Вам всім за чудові виступи дуже дякуємо. Just as we have tremendous performances here right now, these dancers, just like all of our performers throughout the whole 3 days, work every day of the week, every week of the year. And it's not just about coming here, it is about supporting our Ukrainian culture and traditions. And we thank them all for all the work that they do all across Canada, all our performers in the United States, all our performers from Ukraine. They work on a constant basis to be able to support our culture and to be able to come and showcase in festivals like ours what our culture is. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने जितने भी इवेंट्स अटेंड किए हैं ये बेस्ट था उन सब में से, क्योंकि इनका जो स्टेज था काफ़ी पास था और मुझे करीब जाने का मौका मिला। बाकी इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं पास्ट में अगर आप देखें मेरे चैनल पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक एक्सेस नहीं होता था मुझे कि मैं करीब जाके उनको व्लॉग में दिखा सकूं, तो वो हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है। लेकिन इस बार इस यूक्रेनियन फेस्टिवल में मुझे चांस मिला और मैं काफ़ी करीब गया यहाँ पे तो काफ़ी मज़ा आया मुझे पर्सनली। यूक्रेन का आई थिंक ये थीम है ब्लू और येलो। तो अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं जाके अभी तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था। जैसे मैं यहाँ आया तो ये सब स्टार्ट हो चुका था। तो ये देखिए ये स्टेज इन्होंने इधर स्टार्टिंग पॉइंट में ही बनाया हुआ है। अभी जाके मैं आगे के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। और ये बोल रहे हैं कि इसको ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए हैं, ये इवेंट हर साल यहाँ पे होता है। तो इसका यूक्रेन वार से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 28 साल हो चुके हैं इस इवेंट को, जो हर साल टोरंटो में होता है। यूक्रेनियन कम्युनिटी अपना कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके अपना ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है, डांस है, फूड है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस स्टेज से मैंने आपको काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस दिखाई। अभी ये लॉन्ग स्ट्रीट है, यहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ड्रिंक्स के। काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत इवेंट था। आज इसका लास्ट डे था यूक्रेनियन फेस्टिवल का। और काफ़ी सारे यूक्रेन के लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी सेम यूरोपियन लोगों जैसे हैं। तो पता नहीं चलता है इजीली कि कौन रियली यूक्रेनियन है कौन नहीं है, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं हैं
और यूक्रेन की लैंग्वेज भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कुछ समझ एक वर्ड भी समझ नहीं आता, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा सब बहुत फ्रेंडली थे। इतने सारे यूक्रेनियन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे जितने यहाँ पे देखे हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली कम्युनिटी है। और ये ब्लू और येलो इनका आई थिंक थीम है, इनका कल्चरल या फ्लैग से रिलेटेड या कंट्री नेशनल कलर होंगे इनके। और अपनी देसी कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी कम है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या अफ़गानी एक भी नहीं है। ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, शर्ट्स के। ये हर साल यहाँ पे अरेंज होता है फेस्टिवल। लकीली इस साल मैंने देख लिया इसको और आज लास्ट डे था। मैं फर्स्ट डे आने वाला था लेकिन चांस नहीं मिला क्योंकि एक और फेस्टिवल चल रहा था। सेम टाइम पे 3 फेस्टिवल चल रहे थे बड़े बड़े, मैक्सिकन, पॉलिश और ये वाला। हेलो, हाय हाय हाय। यस, सी यू। बोलती है सी यू नेक्स्ट ईयर। तो इससे पहले मैं सेम डे में मैक्सिकन अटेंड किया, फिर पॉलिश किया, तो आज ही मेरे पास आखिरी दिन बचा था। मैंने सोचा मुझे ये डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए और आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे आया बिल्कुल लास्ट डे में। और इसको मैंने देखा, ना सिर्फ देखा, एंजॉय भी किया और व्लॉग भी बनाया। अभी शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 7 o'clock हैं, तो सब कुछ स्लोली बंद होने वाला है यहाँ पे। और म्यूज़िक भी चल रहा है। एक तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है इवन बैकग्राउंड में वॉइस हो मेरी, फिर भी उसके बावजूद भी कॉपीराइट आ जाता है। अभी यूट्यूब ने एक ऑप्शन निकाला है जिससे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं है, मेरे पास एरर देता है। वो डायलॉग्स इंसान के रह जाते हैं जो बंदा बोल रहा होता है और बैकग्राउंड से म्यूज़िक डिलीट हो जाता है, लेकिन आई थिंक वो भी टेस्टिंग फेज़ में है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है मेरे लिए जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस में लोगों ने अक्सर म्यूज़िक लगाया होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ म्यूज़िक वाली जगह। लेकिन सम टाइम उससे बच नहीं सकते ये छोटा सा फूड स्ट्रीट बनाया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे काफ़ी सारा मीट पड़ा हुआ था, जब मैं आ रहा था यहाँ ये सारा फुल था, काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन मैं वो परफॉर्मेंस वाली जगह पे जा रहा था, स्टेज पे, इसलिए फिर अभी जब यहाँ आया हूँ तो मीट ख़त्म हो चुका है, लोग भी काफ़ी कम हैं। And it was like a और मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा गर्म है लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है टोर्नाडो पोटैटो कनाडा, ये देखें, टोर्नाडो पोटैटो कनाडा। काफ़ी सारे किड्स भी आए हुए हैं ये लोग अपना क्लीनिंग कर रहे हैं आई थिंक ख़त्म हो चुका है। ये है ब्लोर वेस्ट विलेज, जो कि डाउनटाउन से अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं अगर ट्रैफिक
पे डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं यहाँ तक आते आते, क्योंकि ये बिल्कुल मिड टाउन से थोड़ा बाहर है, ये ऑलमोस्ट मिड टाउन में है। तो डाउनटाउन से आप वॉक करके यहाँ पे नहीं आ सकते, काफ़ी दूर है। ये पूरी स्ट्रीट में फेस्टिवल का बिल्कुल समा था, हर तरफ फूड, लोग, म्यूज़िक था। लेकिन अभी क्योंकि एंड हो गया है ऑलमोस्ट इस इवेंट का इस साल, तो नेक्स्ट ईयर ये फिर होगा नॉन स्टॉप। पिछले 28 सालों से ये इवेंट चल रहा है यहाँ पे टोरंटो में। आई थिंक ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा यूक्रेनियन फेस्टिवल है। ट्रक्स भी आए हुए हैं फूड के, आइसक्रीम के, स्लशी के। ये क्लॉथिंग का एरिया बनाया हुआ है, येलो टी शर्ट्स। बिल्कुल खाली हो चुका है, पहले यहाँ पे काफ़ी लोग थे जब मैं आ रहा था, लेकिन ये अपना राउंड में कंप्लीट करता हूँ, वो एंड तक मैं जाऊँगा इस स्ट्रीट के, इस रोड के। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का रोड है, लेकिन इसको ब्लॉक किया हुआ है इस इवेंट के लिए, 3 डेज़ के लिए। तो अपने अपने टेंट उखाड़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फिर लगाएंगे। एक ये स्टेज लगा था, लेकिन ये छोटे वाला स्टेज था। लकीली मैं वहाँ पे पहुँच गया बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। अच्छा है मैं उस स्टेज तक चला गया था। अगर मैं यहीं पे ही खड़ा रहता तो यहाँ इतना ख़ास नहीं था, सिर्फ म्यूज़िक था लाइव। और ये आगे फिर रोड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पुलिस भी खड़ी है। इस रोड के लिए पुलिस खड़ी है। और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉक किया है रोड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये किड्स के लिए एरिया बनाया हुआ है, थोड़ा सा खूबसूरत। और ये राइड थी, ये भी बंद हो चुकी है। पहले ये राइड भी चल रही थी जब मैं आया था, अभी इसका भी एंड हो चुका है। और ये सॉकर का है, छोटा सा एरिया बनाया किड्स के लिए। ये किड्स एरिया इस साइड पे है। आई थिंक किड्स के लिए काफ़ी सारी जगहें बनाई हुई हैं खेलने के लिए। ये देखिए और ये कप हैं चाय के। बच्चों को चाय के कप में बिठा दिया गया है, अभी इनको स्विंग करेंगे।
ये तो था राइड्स वाला एरिया किड्स का। और एक ये छोटा सा बोट शिप का है राइड, ये भी बंद हो चुकी है ये वाली राइड। वाओ, डॉग्स काफ़ी हेल्दी डॉग्स थे। ये हॉरर एरिया बनाया हुआ है आई थिंक किड्स के लिए। और ये क्लाइंबिंग वाला एरिया है, ग्रैब द कैश। अगर ऊपर बंदा चला जाए तो उसको कैश मिलता है। सब लोग अपना अपना ट्राई करते हैं। Want to win 285, we will show you how। ये देखें, ये ऊपर क्लाइंब करते हैं और फिर अगर ऊपर तक जाते हैं तो ये लोग विन करते हैं कुछ कैश। और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, इससे मैं साइड में हो जाता हूँ। ये म्यूज़िक काम ख़राब करने वाला है। और तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रीट का एंड है, यहाँ तक ही था यूक्रेनियन फेस्टिवल का एरिया। और ये लास्ट में जो येलो आप केबल्स देख रहे हैं, ये वाशरूम्स बनाए हुए हैं, बाथरूम बनाए हुए हैं WC पॉपुलेशन के लिए, पब्लिक के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर ब्लोर वेस्ट विलेज है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ टोरंटो में जितने भी इवेंट हों, सब ना हो तो कुछ ना कुछ कवर कर सकूँ जितना मुझसे हो सके। और मैं टोरंटो की वो साइड दिखाऊं जो और व्लॉगर्स नहीं दिखाते। हमारे जो अपने देसी इंडियन पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, उनका काम है बैठ के बताना कनाडा आएँ, कनाडा ना आएँ, कनाडा में एक जॉब है नहीं है, बस वो घर में बैठ के ये बातें करते हैं व्यूज़ लेने के लिए। लेकिन इस तरह के व्लॉग्स बहुत कम ही कोई बनाता होगा, मुझे तो आज तक नहीं मिला। या सब फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं कनाडा में कि आज ताए की बेटे की शादी है, आज ये है, हम उधर जा रहे हैं, आज हमने चिकन कढ़ाई बनाई। तो अगर मेरा चैनल थोड़ा डिफरेंट है और आपको पसंद आया तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।